Hello, my dear students. I hope all of you safe at home. So today we are going to discuss about unit first of class 12, that is planning in sports. So let's start with the topic. So there is basically 6 different types of topics in unit first. The first one is meaning and objective of planning. Second one is committee and its responsibility. Third is tournament, knockout and league tournament. Fourth one is fixture and knockout and league fixture. Fifth is intramurals and extramurals. Sixth is specific sports program like run for fun, run for unity, health run, etc. So let's start with the first topic, that is meaning of planning. Planning is the first and most important fundamental of management, which involve deciding beforehand or thinking in advance. In simple words, we can say that planning is deciding in advance as to what is to be performed and when, where, how it is to be performed. It can be said that planning is an intellectual process of thinking in advance. प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने गोल सेट करते हैं और हम अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। मतलब हम किसी भी इवेंट को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक टूर प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम एक बेटर प्लेस डिसाइड करते हैं, देन टाइम डिसाइड करते हैं और फिर उस जगह किस तरह से पहुंचा जाए हम ये डिसाइड करते हैं। तो हम एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल तैयार करते हैं और इस पूरे प्रॉपर प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पोर्ट्स प्लानिंग। प्रॉपर एंड इफेक्टिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड in the field of physical education and sports. Planning is related to organizing various type of sports tournament and sports training programs. So in the end, we can say that the success of any competition or tournament is depend on a good plan. For example, suppose हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो सबसे पहले हम उसका एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। जैसे टूर्नामेंट कहाँ होगा, लेवल ऑफ टूर्नामेंट, टाइप ऑफ टूर्नामेंट एंड टाइमिंग ऑफ टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो हमें एक प्रॉपर प्रोसेस तैयार करना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं, इसके अंदर हम काम करते हैं। सो देयर इज सम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर। सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड डायरेक्शंस। थर्ड वन इज इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग and fourth one is it save our money, time and energy. And now some objective of planning. First is planning increase our work efficiency, ये हमारी काम करने की efficiency को improve करती है। Second is it increase our creativity in work. Third is with the help of planning we can take good control over the work. Fourth is planning provide प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस मेंबर ऑफ कमेटी। प्लानिंग कमेटी के जितने मेंबर्स होते हैं उनके अंदर काम करने की जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है। फिफ्थ है प्लानिंग हेल्प टू रिड्यूस द मिस्टेक्स। प्लानिंग हमारे काम के अंदर जितनी मिस्टेक्स होती हैं उनको रिड्यूस करती है। और सिक्स्थ है इट एनहांस आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। और आखिरी में कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। My dear students, we had previously discussed about planning and its objective. So the next topic is various committee and its responsibility. First, we are going to discuss about various types of committee. So let's start. So while we are going to organize a tournament or competition, so we need to form various committee for smooth conduction of our tournament, because organizing a sports event involve lot of planning and preparation. These committee take complete responsibility for the success of a competition. The committee is headed by a director and the committee for tournament work under the executive committee. For example, if we want to organize a competition, intramural or tournament in our school, so we need a good
स्ट्रॉन्ग टीम वर्क। और इसके लिए हमें कुछ कमेटी तैयार करनी पड़ेगी। और ये कमेटी किस तरह काम करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी एट्सेट्रा। और इसको समझने के लिए हमें इस चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले काम करते हैं डायरेक्टर, देन एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और ऑर्गेनाइज कमेटी के अंदर कई तरह की कमेटीज आती हैं, जैसे पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, कमेटी फॉर एंट्रीज, फाइनेंस कमेटी एट्सेट्रा। तो चलिए अब इन कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करती हैं। सो इसमें सबसे पहले आती है पब्लिसिटी कमेटी। दिस कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिसिटी ऑफ द टूर्नामेंट। और ये कमेटी टूर्नामेंट की पब्लिसिटी करती है, जैसे टीवी, रेडियो, पोस्टर के थ्रू, जिससे हमें पता लगता है कि टूर्नामेंट कब होने वाला है। एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्ट कमेटी। सो दिस कमेटी बेसिकली प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। और ये कमेटी क्या करती है, प्लेयर्स को स्टेडियम तक लाना और ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह लाना, मतलब जिस जगह प्लेयर्स का टूर्नामेंट है या मैच है वहाँ तक लाना और ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एंड द थर्ड इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। सो बेसिकली ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेयर्स के एकोमोडेशन और फूड के लिए। सपोज कोई टीम आउटसाइड द कंट्री आ रही है तो उनके होटल्स का, उनके फूड का, सारे तरह के रहने का इंतज़ाम ये कमेटी करती है, जिसे हम बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी कहते हैं। नंबर फोर्थ इज डेकोरेशन कमेटी। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ डेकोरेशन। सपोज जैसे कंपटीशन के टाइम पे या ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे जितने भी तरह की डेकोरेशंस होती हैं तो वो डेकोरेशन का काम ये कमेटी करती है। एंड द फिफ्थ वन इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। सो बेसिकली दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड एंड इक्विपमेंट फॉर द टूर्नामेंट। सपोज अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो क्रिकेट का सामान, अगर बास्केटबॉल का मैच है तो बास्केटबॉल का सामान, फुटबॉल का मैच है तो फुटबॉल का सामान, और ये सभी तरह के इक्विपमेंट ग्राउंड को अवेलेबल कराने में हेल्प करती है। The next is refreshment and entertainment committee. So basically this committee is responsible for refreshment of the player, official और chief guest। और साथ ही साथ ये कमेटी क्या करती है, एंटरटेनमेंट का भी काम करती है। जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्मेंसेस कराती है, लाइक डांस एंड सिंगिंग की परफॉर्मेंसेस। और हम इसका अच्छा एग्जांपल हम आईपीएल से ले सकते हैं कि आईपीएल के मैचेस के टाइम पे चीयर लीडर्स होती हैं जो टीम को चीयर करती है और लोगों को एंटरटेन करती हैं। नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमेटी। सो ये कमेटी प्लेयर्स, ऑफिशियल और चीफ गेस्ट के वेलकम करने का काम करती है। जैसे प्लेयर्स या ऑफिशियल जो बाहर से आते हैं उनको वेलकम करने का काम करती है। जैसे कोई ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसको वेलकम करने का काम ये रिसेप्शन कमेटी का होता है। ये कमेटी ये काम करती है। एंड नेक्स्ट इज एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी। सो ये कमेटी टीम की एंट्री और डॉक्यूमेंट चेकिंग का काम करती है। और जितने भी टूर्नामेंट में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होते हैं या पेपर वर्क होता है तो ये कमेटी वो सारा काम करती है कि एक टीम में कितने प्लेयर आए हैं, कितने ऑफिशियल्स आए हैं, उन सब का डाटा तैयार करना इस कमेटी का ये काम होता है। नेक्स्ट इज कमेटीज फॉर ऑफिशियल। यस, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल, रेफरी, जज, टाइम कीपर, एम्पायर्स एट्सेट्रा। इनका किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऑफिशियल ये होते हैं जो किसी भी टूर्नामेंट को एक सक्सेसफुली कराते हैं। तो इनके लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें इनकी सिलेक्शन होती है कि कौन से ऑफिशियल्स को बुलाना है जो रिलायबल हो हमारे टूर्नामेंट को कराने में, जिससे टूर्नामेंट स्मूथली कंडक्ट हो सके। Number 10 is announcement committee. So this committee is responsible for announcing the date, venue of the match or event. Basically ये कमेटी क्या करती है कि बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच और आफ्टर द मैच या टूर्नामेंट के टाइम पे जितनी भी तरह की अनाउंसमेंट होती हैं, किसी भी टाइप की अनाउंसमेंट होती है तो ये अनाउंसमेंट कमेटी करती है। Next is first aid committee. So basically this committees play a very important role for organizing a tournament. Suppose अगर टूर्नामेंट के टाइम या मैच के टाइम किसी प्लेयर को चोट लगती है तो सबसे पहले ये कमेटी काम करती है और ऑन द स्पॉट ये इंजर्ड प्लेयर को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराती है ताकि उसे ज़्यादा इंजरी ना हो। एंड द लास्ट इज फाइनेंस कमेटी। सो बेसिकली दिस कमेटी इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। और ये कमेटी टूर्नामेंट के सभी तरह के बजट, इनकम, एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करती है।
ताकि ये पता लग सके कि इस टूर्नामेंट में इतना एक्सपेंस हुआ है या इतनी हमें इनकम हुई है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।